इस पोएम के पहले सेशन में हमने पोएम का इंट्रोडक्शन एंड समरी देखी थी। अब हम इसको एनालाइज करते हैं, यानी कि इसका अवलोकन करने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस ऑफ जॉन ड्राइडन्स एलेक्जेंडर्स फीस्ट। John Dryden wrote his second ode in 1697 in celebration of Saint Cecilia's Day, titled Alexander's Feast or the Power of Music, 10 years after his first tribute, a song for Saint Cecilia's Day. The ode's topic was dictated by the fact that the day celebrated music with the martyred Saint Cecilia. आपको बताया था मैंने, martyred का मतलब होता है शहीद होना, traditionally recognized as the creator of the organ. While Dryden's first effort had praised various instruments, यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं, म्यूज़िक बजाने के जो यंत्र होते हैं, जैसे बांसुरी यानी कि फ्लूट एट्सेट्रा, एंड द ह्यूमन पैशंस दे अराउज्ड, पैशंस मतलब डीप फीलिंग्स, गहरे भाव, अराउज्ड यानी कि क्रिएटेड या पैदा किए. द सेकेंड ट्रिब्यूट focused on two classical stories. Classical यानी कि पुरानी कहानी. One featured Timotheus the musician and Alexander the Great. The other, Alexander with his beautiful courtesan. कोर्टिसन का यहाँ एक्चुअली मतलब होता है तवायफ, कोठे पे नाचने वाली बेसिकली. यहाँ पर वो थेस जो थी वो अलेक्जेंडर की गर्लफ्रेंड थी, एक तरीके से आज की भाषा में अगर हम बोलें तो. Courtesan bride Thais on their wedding day. Timotheus entertains the couple and their guests and moves Alexander, the great warrior, from one passion to another. यानी कि एक के बाद एक टिमोथियस अपने गीतों के माध्यम से अलेक्जेंडर, जो कि इतने महान योद्धा थे, उनके अंदर अलग अलग भाव पैदा करने में वो सफल होते हैं. द ड्रंकन अलेक्जेंडर. अब जश्न था, पार्टी हो रही थी, दावत थी, तो शराब का सेवन तो होना ही था, और अलेक्जेंडर ने भी बहुत शराब पी ली थी और वो नशे में थे. द ड्रंकन अलेक्जेंडर इवेंचुअली डिजॉल्व्स इनटू वीपिंग, ऑफरिंग द ऑडियंस अ न्यू व्यू ऑफ द माइटी वॉरियर, ऑल ड्यू टू द पावर ऑफ म्यूजिक. Critics praised the energy of the ode, which served to invigorate मतलब जोश से भर देना, ताकत और जोश से भर देना, and renew the stories for an appreciative audience. appreciative का मतलब है जो किसी बात को सुनकर उससे खुश हो और उसको अप्रिशिएट करे. ऑडियंस यानी कि सुनने वाले. अर्ल माइनर, जो कि एक खुद एक आलोचक हैं, sees a parallel between the manipulation of Alexander by the musician artist Timotheus and Dryden's manipulation of his audience through the art of poetry. In the narrative, Saint Cecilia eventually enters towards its conclusion, means towards its end, but plays a minor part in the presentation. Alexander remains its center and the audience favorite. The 7 stanzas vary, means they are different in length, with each engaging in much repetition and alliteration. Alliteration यानी कि जब किसी एक ध्वनि को या किसी एक अक्षर को बार बार रिपीट किया जाता है, से बनने वाले शब्दों को बार बार रिपीट किया जाता है, तो आवाज़ उसी एक अक्षर की निकलती है. To the pleasing effect common to musical verse. Each contains a chorus, यानी chorus का मतलब है जब समूह में लोग कुछ गाते हैं, which serves to comment on the scene, always preserving an uplifting mood despite the consideration of death and war. यानी कि हर स्टैंजा के एंड में एक कोरस है, समूह में लोग गा रहे हैं और उनके शब्द ऐसे हैं, कवि ने बहुत ही खूबसूरती के साथ शब्दों का चयन किया है कि सुनने वाले जोश से भर जाते हैं, उनका मूड अपलिफ्ट हो जाता है.
The first stanza sets the scene with Alexander described as the godlike hero and Thais as like a blooming eastern bride in flower of youth and beauty's pride. ये शब्द टेक्स्ट में से लिए गए हैं. The four brief lines preceding the chorus, preceding मतलब जो chorus के just पहले आते हैं, fill with a celebratory tone. Happy, happy, happy pair, none but the brave, none but the brave, none but the brave deserves the fair. The second stanza introduces the musician Timotheus placed on high in the middle of the choir. Placed on high मतलब उनको एक उचित स्थान पर बिठाया गया था जहाँ पर उनको पूरा सम्मान दिया गया. ही प्लेज हिज लायर. नाउ लायर एक छोटा सा तारों का इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाया जाता है. उसका इस शब्द को, इस नाम को हिंदी में दिलरुबा भी कहते हैं, इस वाद्य यंत्र को. विथ फ्लाइंग फिंगर्स मतलब क्विक फिंगर्स, बहुत फट रफ्तार से बजा रहे थे. हिज म्यूज़िक असेंडिंग मीन्स क्लाइंबिंग मीन्स गोइंग अप टू द हेवंस. इतनी बुलंद आवाज़ थी उस म्यूज़िक की कि वो आकाश तक, स्वर्ग तक जा रही थी. वेयर इट इंस्पायर्स जॉय. लश इमेजरी recreates the journey of Jove, moved by love in a dragon's fiery form and riding on radiant spires to Olympia. Now, Jove एक गॉड का नाम है. रोमन माइथोलॉजी यानी कि रोम की पौराणिक कथाओं में जो सबसे इम्पोर्टेंट गॉड है उनका जो नाम जोव है. ओलंपिया अलेक्जेंडर की मदर का नाम था. तो यहाँ पर ये बताया गया है इस स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में, कि जोव खुद धरती पर उतर कर आए थे, वो जो कि एक भगवान थे, और उन्होंने ओलंपिया के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे. और ही देन स्टैम्प्ड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ अ सॉवरन ऑफ द वर्ल्ड एंड द ऑडियंस अज्यूम्स दैट स्टैम्प इज़ अलेक्जेंडर. यानी कि उस प्रेम संबंध का नतीजा ये हुआ कि अलेक्जेंडर पैदा हुए. कहने का मतलब ये है कि अलेक्जेंडर एक भगवान के पुत्र थे, तो वो खुद भी भगवान से कम नहीं थे. इसका मतलब जोव्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द कोरस सीम्स टू शेक द स्फीयर्स. स्फीयर्स का मतलब यहाँ पर है चांद तारे तक हिल गए थे. अ कंपैरिजन ऑफ द वॉरियर प्रिंसेस बर्थ टू अ पोटेंट. द थर्ड स्टैंजा प्रेजेस बैकस, गॉड ऑफ सेलिब्रेशन एंड ड्रिंक. The celebration that Dryden describes had followed Alexander's attack on the Persian capital city of Persepolis. The original story stresses the greed of the looting soldiers who lost all control of their thievery. इन द थीवरी यानी कि चोरी में इतनी लूटपाट मचाई उन सैनिकों ने शहर में, पर्सिपोलिस में, कि पूरा शहर बर्बाद करके रख दिया. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर्स, अमूल्य वस्तुओं को भी उन्होंने खंडित कर दिया या नष्ट कर दिया. Timotheus foreshadows the increased destruction that will follow the drunken debauchery as he sings. Drinking is the soldier's pleasure, rich the treasure, sweet the pleasure after pain. In stanza 4, Timotheus recalls that the king grew vain, fought all his battles over again, and describes Alexander as 3 times he routed का मतलब defeated all his foes. defeated का मतलब होता है हरा देना. foes यानी कि दुश्मन या enemies. and thrice he slew the slain. slew का मतलब होता है काट कर मार देना. He sings of the madness of battle that challenged Alexander. The passion for war eventually softened by pity for Darius, the Persian ruler. At that point, Alexander, the joyless victor, sate as he considered chance, suggesting that he might have been in Darius's place if not for fate, and he weeps. यानी कि चांस यानी कि इत्तेफाक है कि अगर ये भी संभव होता कि डैरियस नहीं मरते और अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती, ये सोचकर ही अलेक्जेंडर रोने लगते हैं. Stanza 5 celebrates the softening of the mighty master as pity melts the mind to love.
Timotheus sings that war is toil and trouble and honor but an empty bubble. यानी कि युद्ध तो में तो संघर्ष करना पड़ता है, और युद्ध जीतने के बाद जो सम्मान मिलता है वो तो थोड़ी देर का होता है, एक बबुले की तरह होता है। पानी में जो बबुले बनते हैं वह जो जल्दी से फूट जाता है। एंड ही अर्जेस अलेक्जेंडर टू कंसिडर दैट इफ द वर्ल्ड बी वर्थ दाई विनिंग, think it worth enjoying. He reminds the ruler of his lovely bride, and then the prince, unable to conceal his pain, gazed on the fair who caused his care, and sighed and looked, sighed and looked, sighed and looked, and sighed again. At length, with love and wine at once oppressed, the vanquished victor sunk upon her breast. Interestingly, while remaining undefeated on the field, Alexander falls under the control of a mere woman. As do many mortal women in classical stories, Thais will co opt the power of the male, tempting men with the passions she arouses to do as she bids them. यानी कि एक औरत एक आदमी को, एक पुरुष को इतना वश में कर, उस पर एक तरीके से वशीकरण कर लेती है कि जैसा वो चाहे वो वैसा करवा सकती है. In the sixth stanza, Timotheus describes the prince awakening as he hears the lyre, amazed to see the furies arise, see the snakes that they rear, with the ghastly यानी कि horrible, terrible, भयानक, भयावह sights explained as ghosts of those slain in battle. यानी कि जो सैनिक युद्ध के मैदान में मारे गए थे, उनके जो भूत हैं वो भूत वहाँ से उठकर इस स्थान पर पहुँच गए हैं. तो आप सोचिएगा कितनी भयावह वो दृश्य होगा. ट्रेडिशनली विमेन हु हॉन्टेड मेन, द फ्यूरीज, symbolize Thais in her control of Alexander, while the snakes suggest the temptation of Eve in the Garden of Eden that led to original sin. ये बाइबल्स की कहानी है जिसमें आपने नाम सुना होगा. बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा दुनिया के पहले पुरुष और महिला थे जिनको गॉड ने, ईश्वर ने पैदा किया था. और ये दोनों एक तरह पति पत्नी गार्डन ऑफ ईडन में खुशी से रहा करते थे. गार्डन ऑफ ईडन में गॉड ने इन दोनों को सब कुछ करने की छूट दे रखी थी, सिवाय कि उन्हें एक पर्टिकुलर विशेष पेड़ का फल नहीं खाना था. लेकिन जो शैतान है वो सांप का भेस बदल कर वहाँ गार्डन ऑफ ईडन में आ जाता है और उन दोनों को उस फल को खाने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है, बल्कि प्रेरित नहीं करता, उकसाता है, और वो उसके बहकावे में आकर फल खा लेते हैं. वो फल खाकर, ये क्रिश्चियन बिलीफ है, वो फल खाकर मानव जाति का प्रथम पाप इंसान ने किया था, क्योंकि उन्होंने भगवान की कही हुई बात को नहीं माना, अस्वीकार किया और शैतान की कही गई बात के अनुसार काम किया. और इसलिए उनको ईश्वर ने पनिश किया और गार्डन ऑफ ईडन, जो कि जहाँ पर वो सुरक्षित रह रहे थे, उससे दुनिया में बाहर निष्कासित कर दिया. और दुनिया में आकर उनको फिर दुनिया की सारी परेशानियाँ, जिम्मेदारियाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. Dryden's audience would have been familiar with the story of Theseus tempting Alexander to burn Persepolis after his men's drunken looting of its riches. Thais led a procession of warriors and women to the accompaniment of flutes and pipes, as if in a grand celebration, and convinced Alexander to hurl his torch into the city. यानी कि थेस आगे आगे थी और अलेक्जेंडर और बाकी सैनिकों को वो लेके गई, और उसके उकसाने पर ही अलेक्जेंडर और उसके सैनिक, जो कि सब नशे में थे, उन्होंने पर्सेपोलिस शहर को जला डाला. हर टॉर्च फॉलोड एंड देन हंड्रेड्स ऑफ अदर्स एंड द वंस ग्लोरियस सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड. यानी कि एक शहर जो बहुत खूबसूरत था उसको नष्ट कर दिया गया.
In Dryden's ode, Thais led the way of the revenging king to light him to his prey, and like another Helen, fired another Troy. The reference to Helen also reflects on the power of women to stir men's passions yani ki deep feelings, even to war. That Thais used instruments during her parade to the city also suggests the power of music to stir passions, helping to overcome the strength of even the great Alexander. Saint Cecilia, the patroness of music, does arrive in the final stanza. This is stanza 7, following all of the action and enlarged the former narrow bounds and added length to solemn sounds, with nature's mother wit and arts unknown before, or both divide the crown. He raised a mortal to the skies, she drew an angel down. इन पंक्तियों का मतलब ये है कि क्रिश्चियंस ये बिलीव करते हैं कि सेंट सिसिलिया इतना मधुर संगीत बजाती थी अपनी ऑर्गन से कि एक दफ़ा जब वो चर्च में म्यूज़िक बजा रही थी, ऑर्गन बजा रही थी, धरती के ऊपर से एक परी, एक एंजल, या हम ये कहें ईश्वर का एक दूत वहाँ से उड़कर गुजर रहा था। और इस ऑर्गन की आवाज़ सुनकर, मधुर आवाज़ सुनकर, वो बहकावे में आ गया और उसको लगा कि इतनी मधुर आवाज़ तो स्वर्ग में ही सुनाई दे सकती है, यानी कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूँ, और वो धरती पर उतर आया। यानी कि वो गलत फहमी का शिकार हुआ। इतनी शक्ति थी सेंट सिसिलिया के संगीत में। The narrow bounds she enlarges with her music are those tied to the ability of mere mortals to make music. Where Timotheus praises the mortal Alexander, raising his name to the heights reserved for celebrated individuals, Saint Cecilia's music is so powerful that it tempts heavenly creatures to descend to earth. यानी कि टिमोथियस ने एक इंसान अलेक्जेंडर को इतना उच्च स्थान दिया कि उसको ईश्वर के बराबर कर दिया। लेकिन सेंट सिसिलिया की म्यूज़िक में इतना पावरफुल थी वो म्यूज़िक कि एक एंजल, एक स्वर्ग का दूत धरती पर उतर के आ गया। The ode has been continuously praised over the 3 centuries since its writing as one of the most beautiful ever written in English.